able to make my legal arguments. The facts are not very complicated. Facts यही हैं जो relevant facts हैं. Facts आपके noted facts. जी मुझे अर्ज करने दें. मुझसे ये कहा गया ना कि आपने गलती की, आप ये भी कर सकते थे, वो भी. मुझे अर्ज करने दें सर. नहीं, कोई हम नहीं कहते गलती की, आपने definitely. ठीक हो गया. Sir, I'm just explaining what the situation was. ठीक हो. So the situation was one of great confusion. No election in Pakistan had ever thrown up this situation because never in the past had a major political party been denied a symbol and thereby de-recognized as a party contesting an election. So this was a novel situation that had arisen, that a large political party, which admittedly had put up candidates all across the country, was now being told that all your returned candidates will be treated as independents and you will be granted no reserved seats. Faced with this situation, what we did was, in the circumstances that we were faced with, complete confusion and a new situation, we joined the SIC on the basis of the precedent of the BAP party, which in some assemblies at least, if not all, had not contested, had not filed lists of candidates for reserved seats before the election, and they were contested National Assembly and secured the seat in the National Assembly. Sir, I will confirm that. But in some assemblies at least, my lord has clarified that. In some assemblies... बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बनी. ठीक हो गया सर. कौमी असेंबली में उनके मेंबर्स आए. चलो मैं तादाद बता देता हूँ. 5 सेनेटर्स आए. सर नेशनल असेंबली की भी तो बात कर रहे हैं. सर रिजर्व सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली वो बाद में आए सेनेटर जब उनको मान लिया गया मेंबर्स ऑफ द बाप पार्टी. बट सर लेट्स स्टिक विद एन असेंबली जहां बाप पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी. They had not won a seat in the KP Assembly, for instance. People, चले उसी analogy को हम ले लेते हैं. They had no seat in the KP Assembly. They had not filed lists of candidates for reserved seats, and yet independents who joined them were recognized as the BAP party, parliamentary party for KP, and on that basis they were granted reserved seats in the KP Assembly as well. So we had this one precedent before us that in an assembly where a party had won no seats, which independents had joined, was subsequently treated as a parliamentary party and was granted reserved seats. So there was this precedent before us. And relying on this precedent and relying on the jurisprudence that regulatory authorities, bodies, the Election Commission of Pakistan included, are bound by their past precedent, unless they change it with due notice to all, then anybody who relies on a past practice... और बता दें जी कि इन 80 के अलावा और सलमान अकरम रजा के अलावा पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स कौमी असेंबली में आज भी पीटीआई के टिकट पे आज भी पीटीआई के मेंबर्स हैं या नहीं? इन 80 के 6 हैं. तो इसका मतलब ये कि आपको कंफ्यूजन नहीं थी पार्टी को. That's why इलेक्शन कमीशन को था ये. बिल्कुल. तो आपको नहीं था. अच्छा, हम तो कोर्ट में थे that you are political party. We were firm that we are a political. आज भी वो लोग मौजूद हैं. लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा. आज भी वो लोग मौजूद हैं. 6 के बराबर 6 या 7 जिसमें गौर साहब है जी. शायद 6 लोग हैं जी. 6. तो अगर 6 लोग मौजूद थे कौमी असेंबली में पीटीआई के, तो हम अगर तस्वर कर ले इन्होंने गलत काम किया, मान लेते हैं कि गलत किया, आप सबको इंडिपेंडेंट. सर उन 6 को भी इन्होंने इंडिपेंडेंट ही तस्वर किया. वो कहीं नहीं गए, वो स्टिल पीटीआई में है. तो ये 80 लोग पीटीआई में क्यों शामिल नहीं हुए? अर्ज कर देता हूँ. आपको तो कंफ्यूजन नहीं. जी मैं अर्ज कर देता हूँ. एक क्वेश्चन यहाँ सलमान और भी ले लीजिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए. उन 6 ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, वो अपने आप को उन 6 ने क्लेम की ऑन द बेसिस ऑफ. तो उनको नहीं पीटीआई माना ना इलेक्शन कमीशन. ना माना हो कहीं ईसीपी में उन्होंने क्लेम किया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस 6 MNAs वी बी गिवन सीट फॉर women एंड द नॉन मुस्लिम. Sir, ECP declared them in the form that it issued to be independents. सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ. सर जब गौहर साहब को भी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने क्लेम किया या नहीं? क्लेम किया है उन 6 लोगों ने ईसीपी के सामने कि हमें भी सीट दी जाए इन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस 6. How could they claim when ECP? हाँ या ना में पहले जवाब. No sir, I don't think they did because they were treated as independents by the ECP. ECP ने कहा कि हम आपको नहीं मानते पीटीआई. दूसरी बात अब ये हो गई कि ऑन द एनोलॉजी आपने ज्वाइन किया था SIC को जी, और वो बात आपकी यहाँ तक नहीं मानी जी. ठीक हो गया. अब आ जाइए स्कोप ऑफ द जजमेंट जो आप डिफेंड. अब मैं उस पे आता हूँ. उन्होंने 187 पे 184 पे मेन डायरेक्ट उस पे आ जाइए ताकि. सर मैं एक मिनट सर मुझे थोड़ा सा पहले एक फैक्ट बता दें. आपके केस के हवाले बार ये बात होती थी, आप उठते थे, हम आपको सुनेंगे. आप जरा फैक्चुअल बता दें कि सिर्फ सलमान अकबर राजा को इलेक्शन कमीशन ने आपने कहा कि आई कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट. आपने यही कहा था. आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाईकोर्ट में. हाईकोर्ट ने मैं फैक्ट्स आप बता दें किस तरह की. फैक्ट्स इस तरह हैं
I filed writ petition number 5211 of 24, which is at page 37 of CMA 5917. आपके सामने रिकॉर्ड आपने petition file बताया। जी मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, which is at page 37 of CMA 5917. क्या बना, उसका ऑर्डर क्या हुआ? जी, उसमें हमने वायरीज को चैलेंज किया। आपने अकेले ने? सर obviously it would be a judgment in rem अगर वो स्ट्राइक डाउन हो जाता। हमने कहा this explanation to rule 94 is ultra vires. What happened to that? That petition was disposed of on the 25th of January 2024 by the Lahore High Court, and that judgment is at pages 7 to 18 of CMA 5839. Matter was remanded to Election Commission. The matter was sent to the Election Commission for consideration. Meanwhile, you challenged it before the Supreme Court. We then challenged the High Court order before the Supreme Court on the ground कि हमने तो वायरीज चैलेंज किए एक रूल की, इलेक्शन कमीशन तो उस रूल को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। जो आपका भी कमेंट था कि जब तक वो रूल और उसकी एक्सप्लेनेशन खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हैज टू अप्लाई दैट एक्सप्लेनेशन एंड दैट रूल। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? जी, मैं इसलिए हाई कोर्ट के सामने हमने ये सदा की। आपके ठीक है, आपके बात आगे क्या? हमने हाई कोर्ट को कहा कि आप मत भेजिए वहां पे, दिस विल बी एन इल्यूजरी। आप हमारे पास आ गए क्या? हम सुप्रीम कोर्ट आ गए जी। हम सुप्रीम कोर्ट आए, फॉरन पिटिशन हमने फाइल की चैलेंजिंग दी हाई कोर्ट ऑर्डर। हमारी पिटिशन पे पहले दिन ऑब्जेक्शंस लगी कि कॉपी मध्यम है। हमने फौरन कॉपियां ठीक की, हमने कहा मध्यम है, अगले दिन फिर फाइल कर। फिर ऑब्जेक्शन लगी कि नाउ द मैटर इज टू क्लोज टू द इलेक्शंस ऑन द 8th of February, इट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। रजिस्ट्रार का ऑब्जेक्शन था सर, ये हमें ठीक है, हमें उन्होंने वापस दो फरवरी को ऑफिस ऑब्जेक्शंस है। 2nd February our petition was returned. These were office agreed. Sir. Whether you have challenged these office मैं अर्ज करता हूँ सर, सुन लेना जरा। ऑफिस ऑब्जेक्शन मान लिया, गलत होंगे, दो दफा गलत होंगे। क्या आपने उन ऑब्जेक्शंस को चेंबर अपील फाइल की? उसके बाद नहीं की। आपके पास रेमेडी थी, डिड यू चैलेंज? रेमेडी अर्ज करता हूँ मैं सर, ये फैक्ट्स को करेक्ट, देखिए फैक्ट्स करेक्ट करने सारा हो गया, नहीं किया, सारा मलबा कोर्ट पे आ रहा है। 2 दफा इस तरह ना करें, आपने चैलेंज नहीं किया, बावजूद रेमेडी के होते हुए आपने चैलेंज नहीं किया। सर, हम 2 दफा सुप्रीम कोर्ट आए, आपने चैलेंज नहीं किया। फाइनली जब 2 दफा ऑब्जेक्शंस लगी और वो रिटर्न हुई, द लास्ट रिटर्न इज ऑन द 2nd of February। मान लिया गलत हुआ होगा, ठीक हो गया सर, ये फैक्ट्स में आपने अपील फाइल नहीं की। उसके बाद हम चाह रहे कि फैक्ट्स करेक्ट हो, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इस दौरान वो जो ऑर्डर था वापस इलेक्शन कमीशन का, वो भी 2 को आ गया, वो आ गया जी। आपने उसको आज तक किसी फॉर्म में चैलेंज कर देते हैं ना, बस कर देते हैं आपके सामने सारा दुरुस्त या गलत पहले से बता दें। सर। 1 मिनट सर, उसके बाद 8 फरवरी आ गई और 8 फरवरी के बाद हमारे पास 3 दिन थे टू टेक एक्शन। अब सिचुएशन ये वो ऑर्डर चैलेंज किया आपने, यानी जो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा आपको कहा कि यू आर नॉट कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, वो ऑर्डर चैलेंज किया? इलेक्शन कमीशन एक ही दफा कहा 2nd February। नहीं, जब रिमांड के बाद वही 2nd February को ही है ना सर। तो वो 2nd February में आप उस ऑर्डर को आपने चैलेंज नहीं किया? तो वो इन प्रोसीडिंग्स में अब आपके सामने सब कुछ आ गया। आपने अदरवाइज चैलेंज नहीं किया? नो, तो फिर इस स्कोप में आप आएंगे ना। ठीक हो गया, 187 के फैक्ट्स हम रखने सामने। राज साहब देखिए, वो बात जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फैक्ट्स करेक्ट करके अब आप आएंगे इस स्कोप में। आपने आते हैं ना सर, आपने अपनी रेमेडी अवेल नहीं की। फैक्ट्स नहीं सर, ये आखिरी बात जो आप फरमा रहे हैं, हम 2 दफा सुप्रीम कोर्ट आए। आप ये चीज देखिए, मैं थोड़ी सी और बात कर नहीं सकता कि उस वक्त हालात क्या थे। चले इस तरह मुझे अर्ज करने आप 2 दफा सुप्रीम कोर्ट आए, 2 दफा हम पे दरवाजा बंद किया गया, और आखिरी बार जो किया गया वो ये कहा गया कि नो इलेक्शन रिलेटेड मैटर विल बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज नाउ द मैटर इज टू क्लोज। ये आपका ऑफिस ने ऑर्डर है, ये किसी जज ने नहीं बोली, किसी जज ने बात नहीं की। बिल्कुल ठीक हो गया। रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी हाई ऑफिस, दैट्स व्हाई रेमेडी ऑफ अपील की रेमेडी प्रोवाइडेड है। आपने नहीं की, इतनी सी बात करें, कोर्ट पे ना डाले ना। ठीक नहीं सर, ये 2 दफा कोर्ट ने हमें कहा कि हम सुनेंगे नहीं। रजिस्ट्रार इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर्ट। एनीवे सर, आई एम नॉट गेटिंग इमोशनल अबाउट इट, आई एम जस्ट प्लेसिंग द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। आप ठीक फरमा रहे हैं कि 2 फरवरी को जब दूसरी बार हमारी पिटिशन हमें वापस दे दी गई, हम चेंबर अपील फाइल कर सकते थे। हम ये तवक्को कर सकते थे कि शायद ये केस हमारा लग जाए, 8 से पहले ही लग जाए, हमें कोई रिलीफ मिल जाए। 8 से पहले नहीं लगता, और उसके बाद 3 दिन में हमने फैसला करना है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है या हमने अपने आप को पीटीआई तस्वर करना है, उसी बेसिस पे हमने रिजर्व सीट्स मांगनी है। सब मामलात हमारे सामने थे। So what was the hope that within 3 days of the 8th of February we would get a final resolution? और ये आखिरी 5-6 दिन थे इलेक्शन के। कुछ बातें मैं अर्ज भी नहीं कर सकता हमारे साथ उस वक्त क्या हो रहा था, वो मैं करूंगा तो आप कहेंगे आप सियासी बात कर रहे हैं। एक फैक्ट और मैं नहीं करता वो बात। एक फैक्ट और बता दें, आपके अलावा ये जो 80 लोग हैं, उनमें से किसी ने भी किसी ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया।
सर उनके ऑर्डर हुए नहीं, मैं कर रहा था, चूंकि सबके लिए कर रहा था, आई वाज देयर एज सर अगर ये ऑर्डर सिंपल सलमान अकरम राजा नो कैंडिडेट I challenge the wiries of the explanation to Rule 94. That would have been an order in rem. उसमें मैंने कहा कि आप पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज नहीं, आप मेरी पिटिशन देख लीजिए काइंडली। चले वो पार्ट वहां तक रह गया। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ जी कि इन सारी बातों के होते हुए भी हमने कुछ चीजें रियलाइज की, हमने आपने रिकॉर्ड की। देखा, बिल्कुल। हमने महसूस किया कि यहाँ पे ये जी जी गलतियां हुई हैं, इसलिए आपने That's कहा why- कुछ रेमेडी। बिल्कुल एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ फॉर द to bring all my lords and my lady to the facts that were there, which were not, I think, fully placed before the court. ये थी sequence of events, जिसके नतीजे में we reached the 8th of February, and then that 3-day period in which we had to decide कि अब हम